Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Kings, Kingdoms and an Early Republic, and under this chapter we have seen that we are discussing the period of 2500 to 3000 years ago, and this period is known as later Vedic period. Early Vedic period is the period in which Rig Veda was composed, that is 3500 years ago, and this is the later Vedic period, okay, in which these Yajur Veda, Samveda and Athar Veda was written down. And we have seen that during this time the kings were becoming powerful. They used to do sacrifices like Aswamegha, and by these sacrifices they become more powerful, because this sacrifice was one of the ways to expand the territory of the king. The king wanted to expand its territory, so for that purpose this Aswamegha sacrifice was done. And we have seen that in this Aswamegha sacrifice the king was the central figure, and charioteer was there who used to sing the songs of bravery of the king and all. And we have also discussed about the Varna system which was prevailing during this period in the society, and we have seen that the society was divided into 4 groups, and these groups were known as Varnas, and this division was done by the priest. And we see that this division was hierarchical, in which the groups, the Varnas, were not given equal status. The Brahmins were considered to be at the highest position in the society, then the position was of the Kshatriyas, then of the Vaishya, and then the last position was of the Sudras, and all this was based on the birth. Your talent, your merit has nothing to do with this. In whichever Varna you are taking birth, you have taken birth in whichever Varna, your work, your life will be decided according to your birth only. So under this Varna system, one more new practice has started, and that is the practice of untouchability, in which the Sudras were considered to be untouchable. If someone gets in contact with these Sudras, they consider to become polluted because of this contact with Sudras. So they were not allowed to enter the public places, they were not allowed to reside inside the village. And the condition of women has also started to deteriorate during this period. Actually, we can say that Sudras and women, they both were facing the same kind of inequality and this injustice. But at the same time, in the society, there were people who were against this kind of system which was prevailing, and there were people who wanted that there should be equality, but most of the people were in support of this prevailing system. And then we have started about the Janpadas. As I told you, Janas, जैसे हमने we have discussed about Janas in the previous class. The group of people are called Janas, and these Janas started to become more powerful. These Janas started to expand their territories, and now these Janas were known as Janpada. And we have discussed, I have mentioned some of the Janpadas like Atranji Kheda, which is in UP, then Hastinapur, it is also in UP, and then Purana Killa, which is in Delhi. So these are the Janpadas. And in the Janpadas we have discussed that people used to live in huts, and they kept cattle as well as other animals, and they were farmers as well, because they grew different type of crops like rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, and they used earthen pots, and these earthen pots, some of them were green color, some of them were red in color. Okay, so we have discussed about
all these things. So then what we find that around 2500 years ago, some Janpadas became more important than others, and these Janpadas who became more important than others were known as Mahajanpadas. And as we have seen, some of the Janpadas are given in your book in the map which is given on this map is very important, map 4 है ना, जिसमें आपके महाजनपदास को दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट महाजनपदास उस समय के थे. तो अब हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट महाजनपदास. सो इन दिस यू मस्ट रिमेंबर, जो कि मैंने पहले ही बताया था, जनास से बड़े थे जनपदास और जनपदास से बड़े कौन थे? महाजनपदास. Okay, and now we will see what was the important features of these महाजनपदास, है ना. क्या बहुत ही important features हमें नज़र आता है इन महाजनपदास का. So first of all, we find that most महाजनपदास had a capital city. ठीक है, उनकी एक कैपिटल सिटी होती थी. एंड दीज कैपिटल सिटीज़ वर इन मोस्ट ऑफ द महाजनपदास, दीज कैपिटल सिटीज़ वर fortified. Fortified means there was a boundary wall around the capital city. पूरा का पूरा फोर्टिफाइड था. जो कैपिटल सिटी है उसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घेर दिया जाता था. दिस इज़ फोर्टिफिकेशन. और ये जो वॉल बनती थी वो वुड का, ब्रिक का, स्टोन का बनता था. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड फोर्टिफिकेशन. सो व्हाट इज़ द फीचर? द फीचर इज मोस्ट ऑफ देम have capitals, had capital cities, and most of these capital cities were fortified. Okay, most of these capital cities were fortified. And now we will see what was the reason for constructing these for this fortification. What was the reason for this fortification? First of all, we see that the reason is protection of the people from external attack. There was at that time it was a very normal phenomena to attack the neighboring country. Any king can attack another kingdom. So there was afraid of attacks from other kings, and there was need of protection. So that is the first reason for fortification. Then other than this, there were rulers who wanted to show their richness and power. है ना, by this fortification they wanted to show how rich they are. They wanted to show how powerful they are, because these forts were very large, tall and impressive. So it was their purposefully they make very rich, very impressive, very huge and large walls around the city, so that people can become, other kings can become aware of their richness and power. So that is also one of the reason. So these are the two reasons. The first is to protect against attack, and the second is to show their richness and strength. And the third point, we can say the third reason was if a fortification was done, then it was easier for the king to control the people who are living inside the fortified area, isn't it? If someone has to go outside, then he has to take permission from the guards which are there
which were there at the gates of the fort. फोर्ट्स फोर्टिफिकेशन हो गया सिटी के चारों तरफ. तो इसमें क्या होता था, सपोज दिस इज ये सिटी है हमारा कैपिटल सिटी है ना. अब ये फोर्ट बना हुआ है तो इसके चारों तरफ ये बाउंड्री बनी हुई है. तो ये ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्कुल बंद है, इसमें गेट्स होते थे है ना, जगह जगह पे गेट्स होते थे जिससे लोग अंदर और बाहर आ जा सकते थे. तो ये यहाँ पर गेट्स में ऐसा नहीं कि कोई भी घुस सकता है कोई भी बाहर जा सकता है. यहाँ पर गार्ड्स होते थे. अगर किसी को भी कैपिटल सिटी के अंदर आना है तो ही और सी हैज़ टू टेक द परमिशन ऑफ द गार्ड. उनकी सिक्योरिटी चेकिंग भी की जाती थी. वो किस पर्पज़ से जाना है, उनको किससे मिलना है. जैसे आप किसी भी इस तरह के प्रोटेक्टेड एरिया में जब आप एंटर करते हो तो आपको एक एंट्री करनी पड़ती है, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर है ना, ये पर्पज़ किससे आप मिलने जा रहे हैं, ये सारा कुछ एंटर करना पड़ता है. तो दीज आर द सिक्योरिटी पर्पज़ है ना. तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जैसे हमारे 39 GTC में ही जब हम एंटर करते हैं तो हमें सारा कुछ फिल करना पड़ता है, रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है. तो इससे क्या होता है कि पूरा पता होता है कि कौन हमारे अंदर आया है, यहाँ पर कौन आया है, कौन गया है, एवरीथिंग इज़ नोन. तो इससे क्या होता है कि लोगों को कंट्रोल करना राजा के लिए उस समय ऐसे रजिस्टर तो नहीं मेंटेन किया जाता था, बट जो गार्ड होते थे वो ओरली ज़रूर इस बात को आंसर करते थे कि उसके आने का पर्पस क्या है, उसके पास कोई वेपन तो नहीं है, वो किसी तरह से सिटी के लोगों के लिए, किंग के लिए कोई परेशानी तो नहीं खड़ा कर सकता. इन सब को आंसर करके ही उसको एंट्री देते थे. तो इस तरह से जब फोर्टिफाइड एरिया होता है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द किंग टू कंट्रोल द पीपल है ना. और ये दीज आर द 3 रीजंस है ना फॉर दिस फोर्टिफिकेशन. और जब इस तरह के फोर्टिफिकेशन किया जाता था तो उसमें बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती थी. बिना प्लानिंग के इट वाज नॉट पॉसिबल टू फोर्टिफाई अ सिटी है ना. एंड सो मेनी ब्रिक्स वर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड द वॉल है ना. तो बहुत सारी प्लानिंग चाहिए थी, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे, बहुत सारे लेबर चाहिए थे है ना. तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो फोर्टिफिकेशन था उसके लिए मेनली 2 चीज़ें चाहिए, प्लानिंग और दूसरा रिसोर्सेज मतलब आपके पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए, लाइक ब्रिक्स होना चाहिए, ब्रिक्स को ख़रीदने के लिए पैसे होने चाहिए, लेबर आपको यूज़ करना होगा तो लेबर को देने के लिए जब आप लेबर हायर करेंगे तो उसको आपको पेमेंट करना होगा तो वो पैसे होने चाहिए है ना. तो इस तरह से बहुत सारी प्लानिंग के साथ और रिसोर्सेज के साथ फोर्ट्स जो थे वो बनाए जाते थे. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट feature of one of the important feature of Mahajanpadas. And now we see that in these Mahajanpadas the Rajas started maintaining armies, regular armies. That is also one of the important feature. Rajas started maintaining regular army. सोल्जर्स रेगुलर रखे जाने लगे, उनको रेगुलर सैलरी दी जाने लगी और वो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर उनको सैलरी दी जाती थी. जैसे पहले क्या होता था जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे तो क्या हमने देखा था कि देयर वाज नॉट एनी रेगुलर आर्मी. जो कॉमन मैन होते थे, जो फार्मर्स होते थे, वो वही अगर बैटल हुआ तो उनको ही बैटल में एज अ सोल्जर यूज़ कर लिया जाता था, रेगुलर आर्मी नहीं होती थी. बट अब क्या हुआ कि अब रेगुलर आर्मी स्टार्ट हो गई है ना. अब रेगुलर आर्मी रहने लगे, राजा रखने लगे, उनको पेमेंट भी किया जाता था. और जो पेमेंट किया जाता था वो कैसे किया जाता था, पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे इस समय, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या होता है ये पंच मार्क्ड कॉइन्स. और भी ज़्यादा हम आगे के चैप्टर्स जब देखेंगे तो हम पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द अनदर feature of this
these Mahajanpadas. And now again one more feature, आप क्या देख रहे हैं कि the king has started fortification, the king has started maintaining regular army for all these two purposes. What is required? Money, रिसोर्सेज. बिना पैसे के ना तो राजा फोर्टिफिकेशन कर सकता है और न ही राजा रेगुलर आर्मी मेंटेन कर सकता है. सो कहाँ से आएगा राजा के पास पैसा? वो क्या अपना पर्सनल पैसा खर्च करेगा? नो. द किंग स्टार्टेड टू लेवी टैक्सेस ऑन द पीपल. ठीक है, लोगों से टैक्स लेने लगा. और टैक्स लेने के लिए भी क्या है, टैक्स लेने के लिए भी किंग को ऑफिशियल्स अपॉइंट करने पड़े और उन ऑफिसर्स को भी उसको सैलरी देनी होगी, है ना. तो इस तरह से अब राजा जो है, जैसे पहले के अगर टाइम हम देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड में टैक्सेस नहीं होते थे. जो भी लीडर था, राजा था, उसको लोग अपनी मर्जी से, अपने खुशी से वॉट एवर दे यूज टू ब्रिंग एज गिफ्ट, ट्रिब्यूट जो भी लाते थे, उसी से सब कुछ हो जाता था, सारे खर्चे मैनेज हो जाते थे. लेकिन अब खर्चे बढ़ चुके हैं, है ना. और इस कंडीशन में ये किंग के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो ओकेजनल गिफ्ट्स पे रिलाई करे. अब उसको, राजा को रेगुलर इनकम चाहिए था, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर रेगुलर हो गया. रेगुलर आर्मी मेंटेन हो रही है, उनको सैलरी जा रही है, फोर्टिफिकेशन हो रहा है, तो खर्चे बढ़ गए थे. और इन खर्च को, इन ऑर्डर टू मीट दीज एक्सपेंसेस, द किंग वॉज इन नीड ऑफ जनरेटिंग इनकम. और कहाँ से ये इनकम जनरेट होगा? द इनकम वॉज स्टार्टेड टू बी जनरेटेड बाई लेविंग टैक्स ऑन द पीपल. रेगुलर टैक्स की जो सिस्टम है वो स्टार्ट होती है इसी समय. सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ दीज महाजनपदास इज टैक्सेशन. ठीक है, टैक्सेशन जो है वो स्टार्ट होती है. यू आर नॉट एबल टू सी इट. ओके, आई एम डूइंग इट. सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ महाजनपदास वाज टैक्सेशन. सो नाउ वी विल सी कि टैक्स जो लिया जाता था वो कैसे, किस बेसिस पे लिया जाता था. सबसे पहले तो इन द महाजनपदास फार्मर्स वर देयर, है ना, हु यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स. मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स. So the farmers were one of the most important source for generating taxes. So what was done by the king, that taxes on crops were levied. ठीक है, टैक्सेस लगाए जाते थे क्रॉप्स पे. और यूजुअली इट्स नॉट कि हमेशा ऐसा ही होता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्स जो लगता था क्रॉप्स पे वो होता था 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस. जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 पोर्शन जो है किंग को देना पड़ता था. ठीक है, जो भी वॉट एवर फार्मर्स ने अपने लैंड पे प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 पार्ट ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड वाज टू बी गिवन टू द किंग एज टैक्स. ठीक है, तो टैक्स के अंदर आपको ये समझना है, इसको याद करना पड़ेगा, है ना, कि जो टैक्सेशन था उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. टैक्सेशन में सबसे पहले जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन. वट एवर द फार्मर्स वर प्रोड्यूसिंग, उसका 1/6 पार्ट वो किंग को दे दिए. ठीक है. देन craft persons were also there in the kingdom. So these craft persons also, they have also to give tax. कैसे वो देते थे? How they give taxes? They gave taxes in the form of labor. ठीक है, लेबर की फॉर्म में वो टैक्स देते थे. लाइक एक वीवर है, ठीक है, तो वो उसको अगर टैक्स देना है तो वो कोई सामान नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा कि ही मे हैव टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग. इसी तरह से जैसे गोल्ड स्मिथ है, तो गोल्ड स्मिथ को भी पूरे महीने में एक दिन, हर महीने में एक दिन, एवरी मंथ में 1 डे उसको किंग के लिए काम करना होगा. तो दिस वॉज द सिस्टम फॉर क्राफ्ट पर्सन, है ना. सो दिस वॉज फॉर फार्मर्स. या समझाने के मैं से लिख दे रही हूँ, ये जो 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन था वो फार्मर्स के लिए था. और क्राफ्ट पर्सन्स
किस तरह से ये देते थे, टैक्स देते थे, इन द फॉर्म ऑफ लेबर. दे यूज टू गिव इन द फॉर्म ऑफ लेबर. ठीक है. एंड देन थर्ड जो है वो हर्डर्स थे. हर्डर्स भी रहते थे उस समय की सोसाइटी में. तो हर्डर्स जो थे दे वर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस. ठीक है. सो हर्डर्स कैसे देते थे? इन द फॉर्म ऑफ animals and animal produce. ये कौन दे रहा है? ये हर्डर दे रहा है. ठीक है. And then we see there were also taxes on goods that were brought and sold through trade. Traders were also there. So how these traders gave taxes? They gave goods जो कि वो bought खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उन goods के फॉर्म में वो taxes देते थे. ठीक है. So traders in the form of goods. ठीक है. गुड्स के फॉर्म में वो देते थे. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि उस महाजनपदास के अंदर हंटर और गैदरर्स भी होते थे. एंड दीज हंटर और गैदरर्स दे प्रोवाइडेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा एज टैक्स. ठीक है. सो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. In the form of forest produce, it was given by whom? It was given by these hunters and gatherers. Okay. So you can see that for every group of people, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेशन वॉज देयर. अगर आप फार्मर हैं तो आपके अपने प्रोडक्शन का, आपको अपने क्रॉप का जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका पार्ट देना है. अगर आप क्राफ्ट पर्सन से तो आपको लेबर सर्विस देनी है. अगर आप हर्डर्स हैं तो आपको एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस के फॉर्म में देना है. अगर आप ट्रेडर हैं तो जो भी गुड्स आप परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो उसके फॉर्म में देना है. अगर हंटर गैदरर हैं तो आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस देनी है. ओके. सो दिस वाज द वे हाउ टैक्सेशन वाज डन. So this is one of the important feature of these Mahajanpadas. And now we see that in these Mahajanpadas, one more important, we can say important change came, and one more important feature of these Janpadas, that was the increase in the agricultural production. Okay. How? First of all, yes. Increase in the agricultural production. अब ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ, क्यों हुआ? इसके पीछे भी कुछ रीज़न है. इसको भी हम लोग एलाबरेट करेंगे. द रीज़न बिहाइंड इंक्रीज़ इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वर टू.
first of all, what we find that during this period, this later Vedic period, iron plowshare was started to be used by the farmers. आयरन प्लॉवेयर्स जो होते हैं, प्लॉशेयर्स जो होते हैं, वो हेवी हैं, है ना, और आयरन तो काफ़ी मजबूत होता है. इसके पहले भी प्लॉ यूज़ होता था. प्लॉ वॉज ऑल्सो यूज्ड इन अर्लियर टाइम ऑल्सो, बट दैट प्लॉ वॉज मेड ऑफ वुड. तो वुड का जो प्लॉ होगा वो बहुत मजबूत नहीं होगा, एंड उससे काम भी उतना इफेक्टिवली नहीं होगा. लेकिन जब ये प्लॉ आयरन के बनने लगे तो क्या हुआ कि आयरन के अगर प्लॉ है तो अगर बहुत हेवी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, तो उसको भी टर्न ओवर किया जा सकता है ना, बिकॉज आयरन है. आयरन जो टूल है हमारा वो काफ़ी मजबूत है. तो ऑब्वियसली जब टूल मजबूत है तो अगर मिट्टी बहुत हेवी है, सूखी है, क्लेई है, तो उसको भी हम टर्न कर लेंगे. लेकिन जब वुडन प्लॉ होता था तो ये नहीं हो पाता था. इट वॉज नॉट पॉसिबल. तो इस कारण से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा. ये हमने लिखा है ना, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा. इसके पीछे क्या रीज़न थे कि क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि आयरन प्लॉशेयर जो है वो यूज़ होने लगा. ठीक है. और दूसरी जो रीज़न थी वो ये थी कि ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया पैडी का, जो कि आज तक टिल नाउ वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस इन द फार्मिंग ऑफ पैडी. ठीक है. पैडी की ट्रांसप्लांटेशन, इसका मतलब ये होता है कि सीड्स को नहीं स्काटर किया जाता. इसमें ये होता है कि पहले जो है वो सैपलिंग्स ग्रो किए जाते हैं. ठीक है. छोटे छोटे जो सैपलिंग्स होते हैं, बिल्कुल सीड से जो आए हुए छोटे छोटे पौधे होते हैं, पहले उसको ग्रो किया जाता है और फिर इन सैपलिंग्स को फील्ड्स में प्लांट कर दिया जाता है. मतलब फील्ड्स में सीधे सीड्स को नहीं स्काटर करके सैपलिंग्स को ग्रो करके सैपलिंग्स को फिर फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है. दिस इज़ द वे, है ना. तो इस तरह से क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ किया, क्योंकि जब एक बार हम सीड को ऐसे ही फील्ड में स्काटर कर देंगे तो क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो पास अगर हो जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाते, है ना. अब हमने सैपलिंग एक जगह ग्रो कर लिया, उस सैपलिंग को हम ला करके यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उनके बीच के डिस्टेंस को हम मेंटेन रखेंगे, है ना, और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे. तो उससे क्या होता है, सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है. सैपलिंग्स की क्रॉप्स की सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है. तो इस कारण प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है. तो जो स्लेव मैन और वुमेन होते हैं, जिनको हम दास और दासीज कहते हैं, जिनको उसका कहा जाता था उस समय कम्माकार्स भी कहते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर, जिनके पास लैंड नहीं होते, दे आर farmers, they know the art of farming but they are not having any land. So these people are known as kammakars. At that time these people were known as kammakars. So these kammakars were employed in this work, in this transplantation of sapling of paddy. ठीक है. तो इस तरह से ये जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ और जो आयरन प्लॉशेयर जो आया उसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया. ओके. एंड दीज आर द फीचर्स. ये हमने इसको कर लिया पूरा. ठीक है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर. इसमें कुछ चीज़ें जो हमने देखा कि फोर्टिफिकेशन हो रहा है, तो फोर्टिफिकेशन के पीछे रीज़न क्या था, किन चीज़ों की ज़रूरत थी फोर्टिफिकेशन में. फिर हमने देखा कि रेगुलर आर्मी मेंटेन करने लगे, किस तरह से उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें थी वो हमने देखा. देन टैक्सेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि राजा के एक्सपेंडिचर रेगुलर हो गए, खर्चे बढ़ गए. ठीक है. और टैक्सेशन में हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ किस से कौन से फॉर्म में टैक्स लिया जाता था. एंड देन हमने देखा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी समय में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की. इसके पीछे जो हमने अभी जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस की दो रीज़न थे, एक तो आयरन प्लॉशेयर और दूसरा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द सैपलिंग्स. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू segment, a new subtopic that is about the Magadha. मगध का जो जनपद है वो इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल था. इट वॉज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास इन अबाउट 200 years. 200 सालों तक ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पावरफुल महाजनपद रहा था.
तो आखिर क्या रीज़न थे, क्यों मगध ही सबसे पावरफुल, सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद क्यों बना, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो थे वो मगध में बहते थे, मगध से होकर बहते थे, लाइक गंगा। मगध क्या है, मगध आज का बिहार है। मोस्ट ऑफ यू आर नोइंग दिस, है ना। मगध जिसको हम कह रहे हैं दैट इज़ प्रेजेंट डे बिहार। बट उस समय ये बिहार तक ही नहीं लिमिटेड था, इसकी टेरिटरी बहुत बड़ी थी। इसका सेंटर बिहार में था, आज जिसको हम पाटलिपुत्रा कहते हैं, दैट इज़ पटना, है ना। जो पटना है उसी को हम पाटलिपुत्रा उस समय कहा जाता था। तो सेंटर पटना में था, आज का बिहार ही उसका मेन सेंटर था, लेकिन वो काफ़ी एक्सपैंडेड था, इसलिए हम उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल कह रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आखिर क्या रीजंस थे, क्यों मगध जो है वो इतना पावरफुल बना।